میرے خیال سے جو لوگ آن لائن ہیں اس وقت وہ سب مجھے جانتے ہی ہوں گے. اگر کوئی نہیں جانتا تو وہ مائک آن کر کے بول سکتا ہے. اگر جانتے ہیں تو نہیں جانتے تو پھر میں اپنا تعارف کروا دیتا ہوں آپ کو. آپ اپنا تعارف کروا دینا، جس کو نہیں پتا ہوگا اس کو پتا چل جائے گا. اوکے. میرا نام محمد ماجد ہے. بیسک رہائش کیروڑ پکا ضلع لودھرا سے ہوں، اور ابھی موجودہ رہائش جو ہے نا وہ بہاول نگر سے ہوں. باقی شاید آپ سب جانتے ہی ہوں گے مجھے تقریباً اکثریت اس وقت جو بھی ہے. میں نے ایک ایڈ لگائی تھی سوشل میڈیا پہ کہ 10 دن کے اندر جو ہے نا آپ لوگوں کو بزنس سکھایا جائے گا اور بزنس بلڈ بھی کروا کے دیا جائے گا، وہ بھی بالکل فری. اور آپ لوگوں کے نمبر بے شک آپ میرے جاننے والے بھی ہوں گے، لیکن میرے پاس آپ لوگوں کے نمبر نہیں تھے، موجود نہیں تھے. نہ مجھے معلوم تھا کہ کون سا نمبر کس کا ہے اور کون سا نمبر کس کا ہے. سر آواز نہیں صحیح آ رہی ہے. آواز سے نہیں آ رہی. سر بیچ میں آواز کٹ رہی ہے. اب آ رہی ہے؟ ہیلو. اب آ رہی ہے آواز؟ ہیلو. بولے. آپ بتا ہی نہیں رہے کہ آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی. آواز آ رہی ہے؟ سائن اپ کرنے ہیں، سائن اپ کر کے آ رہی ہے آواز؟ مسئلہ بن رہا ہے اس میں. اب آپ کی آواز خراب آ رہی ہے، اٹک رہی ہے. ہیلو. جی آواز آ رہی ہے لیکن بیچ میں اٹک جاتی ہے. جی سر بولیں. اب آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے؟ ہاں جی اب آ رہی ہے. چلیں تھوڑا سا مائک کو قریب کر لیتے ہیں. اب ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. جی آ رہی ہے آواز، آپ سٹارٹ کریں. اچھا، تو ہم نے ایک ایڈ لگائی تھی آپ لوگوں کو. میں نے تقریباً جو ہے نا وہ 300 بندوں کو ٹارگٹ کیا تھا، جبکہ 300 کے نمبر میرے پاس نہیں تھے اور مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ نمبر کس کس کے ہیں، اور وہ میسج آپ لوگوں تک پہنچ گئے. سر آواز پھر خراب ہو رہی ہے. پھر یوں کرتے ہیں کہ سب کو ان میوٹ کرتا ہوں اور پھر اس کلاس کی ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی، آپ وہ ریکارڈنگ سن لینا. کلیئر آواز آ رہی ہے آپ کی. اب دیکھیں نا، اب جن کو نہیں آ رہی وہ کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی. اگر اسی طرح چلتا رہا تو پھر نہ تو کلاس ہوگی اور نہ آپ کو معلومات ہوگی. یہ شاید نیٹ کا پرابلم چل رہا ہے، اس وجہ سے آواز نہیں آ رہی ہوگی. سگنل ڈراپ ہو رہے ہوں گے. آئی تھنک آپ لوگ کسی ایسی جگہ پر ہوں گے جہاں آپ لوگوں کو سگنل صحیح نہیں آ رہے. ہاں جی، اب آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے اب آواز صحیح آ رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا، تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا جو ہے نا یہ ادارہ ہے فیوچر اسکل کے نام سے، بہاول نگر مہاجر کالونی میں. ہم ادھر فزیکل کورس بھی کرواتے ہیں اور آن لائن اب ہم نے یہ شروع کیا ہے. اچھا، یہ جو ہم آپ کو 10 دن میں کورس کروا رہے ہیں نا، یہ ہے بیسک کورس، جس میں آپ کو انشاءاللہ جو ہے نا
ایک سافٹ ویئر سکھایا جائے گا 10 دن کے اندر اندر، جس سے آپ جو ہے نا مارکیٹنگ بالکل آسان مارکیٹنگ اور بالکل فری مارکیٹنگ کر سکیں گے. جیسا کہ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ میرے پاس آپ لوگوں کے نمبر نہیں تھے، میں نے آپ کے نمبر جو ہے نا وہ کمپیوٹر سے ہی کیچ کیے، کمپیوٹر سے ہی میں نے ان کو جو ہے نا ٹارگیٹ کیا، اور کمپیوٹر نے ہی یہ سب میسیجز دیے. ہاں جب رپلائی آیا تو وہ میرے موبائل پہ آیا. ٹھیک ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں نا تو ایک ایک کر کے آپ سوال کر لیں. اس کے بعد جو ہم نے ایک ایڈ لگائی تھی نا، وہ ایڈ تھی کہ آپ کے مائنڈ کا انالائز کیا جائے گا، اور پھر ہماری گارنٹی ہوگی کہ 10 دن میں آپ جو ہے نا لرننگ کر کے ارننگ کر پائیں گے. اگر پہلے تو جو میرے 10 پوائنٹ ہیں، جو ہماری ایک چپ کی بات کی تھی میں نے ایڈ کے اندر نا، کہ آپ کے مائنڈ میں ایک چپ لگائی جائے گی، تو وہ چپ کی بات میں بعد میں کروں گا. پہلے آپ لوگ جو اس وقت جب آپ کو میسج موصول ہوئے تو اس وقت آپ لوگوں کے کافی سارے کوسچن تھے. اب 300 بندوں کو انسان فوراً کوسچن میں اتنا کچھ نہیں بتا سکتا، اسی لیے یہ ایک ڈیمو کلاس رکھی گئی کہ آپ کو جو ہے نا ڈیمو کلاس میں جو بھی آپ کا سوال ہوگا وہ آپ کو بتا دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ سوال کرنا چاہیں تو میں ایک ایک کو آن کرتا ہوں، اور مثلاً ایسا بھی ہے کہ اگر ایک آن کروں گا تو 10 بندوں کا سوال اس ایک میں ہی چھپا ہوگا. جو ایک بندہ آپ میں سے سوال کرے گا تقریباً سب کا وہی سوال ہوگا، اور اگر کسی کا کوئی الگ سے کوسچن ہو تو وہ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی یہ حسن طاہر ہیں، یہ مائک آن کر لیں اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو. حسن طاہر. نہیں سر، میں کچھ بھی نہیں پوچھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ مائک بند کریں. جو پوچھنا چاہتا ہے نا وہ اپنا مائک آن کرے اور وہ کوئی سوال کر لے، جو بھی اس کورس کے متعلق جو بھی سوال کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی سر جی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں. کراچی سے؟ جی جی الحمد للہ خیر خیریت. اللہ کا شکر. آپ سنائیں. جی سر جی الحمد للہ. اچھا، فرسٹ آف آل تو معذرت کے ساتھ ابھی میں جیسی گھر آئی ہوں تو اس وقت میں نے جوائن کیا. ابھی میں نے یہ ابایا وغیرہ رکھا، آتے ہی پہلے میں نے جوائن کیا. جو آپ کی سٹارٹنگ کی گفتگو تھی اس سے میں محروم ہو چکی ہوں. نہیں وہ کی تو نہیں، سٹارٹنگ کی نہیں. میں کافی ویٹ کروایا لوگوں کو جو ہے نا. یہ ابھی تقریباً 5 منٹ بھی نہیں ہوئے. ابھی میں نے اپنا تعارف کروایا بس، تو ابھی سٹارٹ نہیں کی تھی. چلیں جی الحمد للہ. اچھا، فرسٹ آف آل تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں خود جب میں نے یہ گروپ جوائن کیا تو میرے مائنڈ میں کافی کوسچنس تھے کہ ہے نا ہمارا کورس کیسا ہوگا. اور معذرت کے ساتھ اس وقت میں نے میم کو بھی تنگ کیا، اور آئی تھنک سو آپ کو یا پھر کوئی اور سر تھے ان کو بھی میں نے میسیجز کیے تھے کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا یہ کورس کس ٹائپ کا ہوگا، کیا ہے. تو اگر آپ ایکسپلین کر دیں گے نا کمپلیٹلی ڈیمو میں ہی نا تو جی ہمارے مائنڈ کلیئر ہو جائیں گے. اور میں نے ڈائری پین اٹھا لیا ہے، تو آپ ایکسپلین کر دیں تاکہ ہم لوگ وہ ایک ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں، اور اس طریقے سے پھر آپ کے پوائنٹ بتانے کے بعد ہمارے کوسچنز ہوں گے. اور ماشاءاللہ جتنے بردر اور سسٹر ہمارے ساتھ ہیں تو ان سب کے کوسچنس بھی تبھی ہوں گے نا جب آپ کے ہم لوگ بولتے ہیں آپ کا کمپلیٹ وہ سن لیں گے. ابھی آپ کا سٹارٹنگ کا تھا تو میں نے ابھی انہیں بتایا ہے. ابھی شاید آپ نے پھر وہ بات نہیں سنی. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ میرے پاس آپ لوگوں کے نمبر نہیں تھے. ٹھیک ہو گیا. جی تو میں نے 300 نمبرز کو ٹارگٹ کیا اپنے ایک سافٹ ویئر سے. ٹھیک ہے. اس میں سے میرے پاس 71 لوگوں نے جو ہے نا وہ یہ جوائن کی کلاس، یعنی کہ گروپ. اور کافی ہوں گی میرے پاس یہی ریکویسٹ آئی کہ جی ہمیں ریکارڈنگ دے دینا آپ ڈیمو میں جو بھی آپ بتائیں گے. تو وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو جیسے جیسے ریکارڈنگ مکمل ہوگی آپ کو گروپ میں بھی جو لوگ نہیں آ سکے اس ٹائم پہ نا،
काफ़ी लोगों ने पर्सनल में आके मैसेज किए थे कि हम क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते इस टाइम पे, तो उनके लिए ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उन्हें ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कहने का मकसद ये है कि ये एक बिजनेस, पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूँ, पहले आप मेरे बारे में अच्छे से जान लें, क्योंकि कुछ लोग इधर मौजूद हैं जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अब काफ़ी ऐसे हैं जो मुझे नहीं जानते। मेरी एज जो है ना, मेरा नाम मोहम्मद माजिद है, एज जो है मेरी वो 35 ईयर्स है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी जॉब नहीं की। मैंने तकरीबन 22 ईयर्स जो है ना, जब भी किया अपना बिजनेस किया है, और मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है बिजनेस का। ठीक हो गया? जी सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना तो क्लियर हो गया माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको हाँ, मजीद कामयाबियां और फरमाए। मैंने जो ये अब क्लास में ये जो ऐड किए हैं मेरा मकसद ये था कि देखें, हम सब जो है ना वो बहन भाई ही हैं पूरे, अगर हम समझें तो एक दूसरे को, ठीक है ना। अगर इंसान, अल्लाह ताला ने ना इंसान को पैदा किया इंसानी हमदर्दी के लिए। अगर मैं चाहता तो मैं इस हुनर से अकेला फायदा उठा सकता था, जबकि मेरी ये दिन रात की मेहनत है। मैं पहले फिजिकल में ही काम करता था, अब मैंने ये ऑनलाइन में काम शुरू कर दिया, जबकि मेरा बिजनेस का एक्सपीरियंस जो है वो 22 ईयर्स 22 साल है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर कभी भी जॉब नहीं की। आ रही है मेरी आवाज? जी जी सर जी, आ रही है, आपकी आवाज क्लियर है। हाँ, तो ये कोर्स जो है ना, ये अगर देखा जाए तो ये एक पेड कोर्स है। इस पे दिन रात की मेहनत हुई है। 10 दिन में पूरे यूट्यूब के ऊपर आपको कोई भी ऐसी गारंटी नहीं देगा कि जो आपको ये कह दे कि जी आप 10 दिन में बिजनेस करोगे, आप बिजनेस बनाओगे भी, बिजनेस बिल्ड भी करोगे और अर्निंग भी करोगे 10 दिन की लर्निंग के बाद। ठीक है ना। और अगर कोई करेगा तो वो कहेगा जी एडमिशन लेने के लिए जी 1000 रुपया पहले फीस जमा करवाएं, 500 रुपया फीस जमा कराएं, और फिर आपको वो जो है ना एडमिशन देते हैं, और फिर वो आपको लंबी लंबी क्लासें देते हैं। और वो लंबी लंबी क्लासें देने का मकसद ये होता है कि जो वो अपनी वीडियोस जो है ना वो यूट्यूब पे लेके जाते हैं, और फिर वहां से वो अपनी अर्निंग तो कर जाते हैं, लेकिन आवाम का टाइम जाया कर जाते हैं। ऐसे ही है ना। हेलो। जी जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, आप बताते रहे ना, फिर मुझे ऐसे होता है कि अभी पता नहीं नेटवर्क में कोई मसला ना हो गया हो। तो ये हम आपको ना ये बिजनेस स्किल सिखाएंगे 10 दिन के अंदर, कि किस तरह हम 10 दिन के अंदर बिजनेस को जो है ना वो अपग्रेड करेंगे, सीखेंगे, लर्निंग करेंगे 10 दिन में। और किस तरह हमने ऑडियंस तक अपना पैगाम पहुंचाना होता है, और किस तरह ऑडियंस हम तक पहुंचती है। अब आप यहीं से देख लें कि मेरे पास आपका नंबर तो नहीं था, ना मैं आपको जानता था, ना आप मुझे जानते थे, लेकिन मेरा मैसेज आपके पास आया। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने ग्रुप बनाया हो पहले, कि भाई मैंने एक ग्रुप में 500 लोग जमा किए, उन 500 को मैंने अपना एक मैसेज कर दिया, ऐसा भी नहीं है। मैंने आप सबको जो है ना अकेला अकेला मैसेज सेंड किया है। तो इसके अंदर हम जी बोलें। जी सर जी, आया था मैसेज, ही आया था पर्सनल में। हाँ, देखिए ना, जब हम एक ग्रुप में मैसेज करते हैं ना, मसलन अब एक ग्रुप है आज, अब ये देख लें कि ये हमारा फ्यूचर स्किल का ग्रुप है। अगर इसके अंदर आज की डेट में 100 SMS हुए हैं, तो क्या लोगों ने जो भी इस ग्रुप में थे, क्या उन्होंने 100 के 100 SMS रीड किए? नहीं किए। वो ऐसे ही डिलीट कर देते हैं। जब देखते हैं ना 100 200 300 मैसेज आया हुआ है, तो वो देखते ही नहीं है, डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह ग्रुप बना के मार्केटिंग नहीं होती। मार्केटिंग कब होती है? आप देखें, आप लोग फेसबुक पे ऐड लगाते हैं, तो फेसबुक पे लोग कब फेसबुक चलाते हैं? जब रात को आकर लेटते हैं, सोते हैं, तब मोबाइल को लेके वो चला रहे होते हैं, और तब कोई आपकी ऐड आ जाए सामने तो वो देख लेते हैं। और फेसबुक की ऐड आप लगाएंगे तो कम से कम भी $1 डेली का है, 300 रुपया आप डेली का खर्च करोगे, तब जाके आपकी फेसबुक पे ऐड लगती है। जबकि जो ये बिजनेस स्किल हम आपको सिखा रहे हैं, इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं है। आपका जो है ना ये बिजनेस भी बनेगा, आपका बिजनेस बिल्ड भी होएगा होगा, और आप जो है ना वो अर्निंग भी कर पाएंगे। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन?
अब सारे खामोश हैं। उस दिन जब हमने मैसेज किए थे तो उस वक्त सभी पूछ रहे थे ये क्या है, कैसे है, तो बोल रहे हैं। अब पूछें क्या पूछना है आपने, फिर मैं आगे अपना काम शुरू करता हूँ। सर ये जो कोर्स है ये कितने दिनों का है? ये 10 दिन में आपको मुकम्मल करवा दिया जाएगा। 10 दिन के अंदर आपकी एक ऑनलाइन शॉप भी होगी, आपके पास 10,000 प्रोडक्ट भी होंगी। मेहनत आपने करनी है, ठीक है। और आपको जस्ट घर बैठ के ही काम करना है। आपको आइटम भी दिया जाएगा, आपको मार्केट भी दी जाएगी, आपको नंबर्स भी दिए जाएंगे, आपको ये सब कुछ करवाया जाएगा इन्हीं 10 दिन के अंदर अंदर। आगे 10 दिन आपने काम करना है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है ना, जो मैंने आपसे एक बात की थी कि आपके माइंड में एक चिप ऐड की जाएगी। अब मैं आने लगा हूं अपनी चिप की तरफ, ठीक है ना। और किसी ने कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ लें। अच्छा पहले मेरी बात सुन लें, ये तीन मिनट, 1 मिनट, सॉरी जरा 1 मिनट, फराज भाई 1 मिनट जरा, जल्दी करते हैं कोडे की। ये ना अभी ये टाइम ऑफ हो जाएगा जूम क्लास का, तो दोबारा लिंक सेंड किया जाएगा, तो दोबारा से आप इसे ज्वाइन कर लेना लिंक को। हेलो, तो सर जी इसमें एडिटिंग वगैरह का भी कोई सीन है? इसमें आपको सिर्फ बेसिक जो है ना हल्का सा ग्राफिक सिखाया जाएगा ताकि आप पोस्ट बना सकें, बस। बाकी सॉफ्टवेयर चलाना बताया जाएगा आपको कि उस सॉफ्टवेयर से कैसे हम जो है ना मार्केटिंग कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। और जो 10,000 आइटम्स होंगे वो भी आपकी सिरदर्दी नहीं है, वो आपको एफिलिएट मार्केट के साथ ज्वाइंट किया जाएगा। तो वो जो जिस कंपनी के साथ आपको ज्वाइंट किया जाएगा वही कंपनी उनको वो चीज पहुंचाएगी, आपने जस्ट मार्केटिंग करनी है और आपका उस पर कोई खर्चा भी नहीं आएगा। मसलन अगर आप मार्केटिंग करते हैं फेसबुक पे जाकर, तो फेसबुक को आपको जाहिर सी बात है 15 दिन की अगर आप वो लगाएंगे ऐड, तो 300 रुपया पर डे आप देख लें कि 5,000 रुपये आपका लग जाता है 15 दिन का, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि कस्टमर जल्दी जल्दी आएगा या नहीं आएगा। ये जो बिजनेस मार्केटिंग है ना, जो बिजनेस मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर है, ये इतना ऑथेंटिक है और ये इतना जबरदस्त है कि फेसबुक तो लोग रात को चलाते हैं, आपका मैसेज तो उसी टाइम जाता है, लोग उसी टाइम हर 5 मिनट बाद तो मोबाइल को निकाल के देख रहे होते हैं, और जब भी किसी नए न्यू नंबर से मैसेज आ जाए तो उसको तो लोग सबसे पहले देखते हैं। मैंने कहा आवाज आ रही है सबको? ये ना मीटिंग का टाइम खत्म हो गया, 40 मिनट की क्लास होती है, तो ये आपको ग्रुप में अभी दोबारा लिंक शेयर हो जाएगा, तो दोबारा आप इसको जैसे ये बंद होती है क्लास तो आप दोबारा लिंक पे क्लिक करके दोबारा ज्वाइन हो जाना। कोई और सवाल पूछना चाहे? जी कोई और एनी क्वेश्चन? कोई नहीं है अब? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई बात समझ में ना आई हो तो वो पूछ लें। सब कुछ समझ में आ गया, क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, मैं ना दोबारा आपको लिंक सेंड करता हूँ, क्योंकि ये 40 मिनट के बाद जूम जो है ना हमारी ये बंद कर देता है, तो दोबारा लिंक सेंड करता हूँ, आप ग्रुप में चले जाएं और वहां से दोबारा लिंक को जो है ना ज्वाइन कर लें। इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लाइक अगर हम लोग देख रहे हैं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की हम लोग ने प्रॉपर्टीज के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल उसके में जाएंगे माई कंप्यूटर में, वहां पर जाके हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को ओपन करेंगे, वहां पर इसकी जितनी भी डिटेल होगी वो हमारे सामने आ जाती है कि इसकी रैम कौन सी है और इसकी जनरेशन कौन सी चल रही है, इसकी हार्ड ड्राइव कितनी है उसके अंदर। इसी तरह लैपटॉप है और मोबाइल की स्टोरेज के अंदर जब हम जाते हैं तो वो हमें पूरी डिटेल दिखा देता है, शो करवा देता है कि आपकी रैम हार्ड ड्राइव है वो ठीक हो गया। यानी कि इससे हमें ये मालूम हुआ कि किसी भी चीज को किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज में अगर हम जाएंगे तो हमें मालूम होगा। जी जी
ऐसे ही है, जी जी ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन आप अपने पास लिख लें कि अगर हम कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो हमें परफेक्ट मालूम हो जाएगा कि जो है ना उसके इसकी रैम और वो क्या है उसके या उसके अलावा हम लोग जब इसके सीपीयू को ओपन करेंगे ठीक है, यानी बस वो उसको खोल प्रॉपर्टीज होगी ना, इसकी प्रॉपर्टीज होगी ना, जी जब प्रॉपर्टीज में जाएंगे वहां पे हर चीज ही आ जाएगी। मतलब उसकी डिटेल उसकी जो उसके टिपिकल पार्ट होते हैं उसको देखने से भी उसके ऊपर लिखा होता है बकायदा कि आप लोगों के पास क्या यानी कि चीज किस हम इसके अंदर झांकेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि क्या है ये। ठीक हो गया। जी बिल्कुल जी चलें जी जी, अब ये मुझे ये एक पिक्स और आपको नजर आ रही है सामने, ये एक मशीन है। अब मुझे हेलो, हाँ जी हाँ जी ये जी मशीन सर नजर आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी जी सर ये मेरे ख्याल से बिल्कुल न्यू मशीन है। जी अगर हम इस पे पैकिंग करेंगे तो क्या इस पे बिल्कुल परफेक्ट पैकिंग होगी? और अगर इसकी जगह पे हम एक पुरानी थक्कड़ मशीन रख देंगे तो क्या उस पे जी परफेक्ट पैकिंग होगी? दोनों में से अच्छी नहीं पैकिंग किस पे होगी? न्यू जो पे न्यू मशीन है। ठीक हो गया, यानी कि जो पुरानी मशीन होगी उस पे पैकिंग सही नहीं होगी ना। नहीं होगी। जी ये भी पॉइंट लिख लें आप अपने पास। सर वैसे सर अगर हमारे पुरानी पास जो मशीन की क्यों नहीं होगी पैकिंग, सही वजह? कंपोनेंट या पार्ट जो हैं वो अगर अच्छे होंगे तो वो बेहतर ही रिजल्ट देगा चाहे वो पुरानी हो जाए। नहीं नहीं, पुरानी में जाहिर सी बात है, एक 30 साल एक चीज चल गई, आखिर आप उसकी जी देखभाल करते रहोगे तो वो सही चलेगी ना। अगर आपने देखभाल हाँ नहीं की जी तो फिर तो नई मशीन ही सही चलेगी ना। हाँ जी जी तो बिल्कुल। फिर क्योंकि हाँ यहाँ जी तो तो इंसान भी अगर 30-35 साल चल जाता है तो उसके भी नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है ना। चलें अब आगे जरा आगे 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 आ जाएं आप। तीसरा सवाल मेरा ये है कि ये दो लोग नजर आ रहे हैं आपको, हाँ जी हाँ जी इसमें से एक बड़ा खुश है और एक मायूस है। आप लोगों में से भी कुछ इस तरह ही होंगे, कुछ बड़े खुश होंगे और कुछ मायूस होंगे। तो इसकी ये सामने लिखा हुआ भी आ रहा है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। तो इसमें से फायदे में कौन है दोनों में से? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आवाज एनर्जी। जिनकी आ रही है मैं फिर इन्हें वेटिंग रूम में डाल दूंगा। मैंने पहले कहा है कि माइक बंद रखें अपना। सर माजरत के साथ आपकी दरमियान में बात काट रही हूँ, आप काइंडली 2 मिनट के लिए मुझे होस्ट करें, मैं यहाँ की सेटिंग कर देती हूँ माजरत के साथ। कोई बात नहीं। मैंने की है लेकिन ये बार बार जो है ना वो सर ये म्यूट करके ना वहां पर आ रहा होगा सेव, आप सेव पर क्लिक कर दें। वो मैंने किया है ना, ये बार फिर खोल लेते हैं। अब ये देखें, ये मैंने कर दिया है। ये अब ये अली हमाद साहब इनका माइक खुला है। चले मुझे ये कैमरे बताएं कि इसमें फायदे में कौन है? एक नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला। ठीक हो गया, ये भी लिख लें आप अपने पास, पॉइंट नोट कर लें। अब ये एक आगे पिक्स नजर आ रही है आपको? जी सर जी आ रही है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि देखिए हमने 3 पॉइंट नोट किए। पहले कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज चेक की, ठीक है? जी तो जब हम उसकी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं तो हमें मालूम होता है कि इसके अंदर क्या है। जी उसके बाद एक नई मशीन और एक पुरानी मशीन का जब हमने मुआवजा किया तो उससे भी हमें ये मालूम हुआ कि जो नई मशीन होती है वो सही पैकिंग करती है और जो पुरानी हो जाती है ना उसमें फॉल्ट आ जाता है और वो फिर घसीट के ही चलती है। जी और तीसरा पॉइंट हमारा ये था कि जो पॉजिटिव एनर्जी में था वो इंसान बड़ा खुश था और जो नेगेटिव एनर्जी में था वो इंसान बड़ा जो है ना मायूस था। जी अब बात आ जाती है कि ये जो तो चौथी तस्वीर है ये हमें शो कराती है गोल। अगर अब आप, मेरा सवाल आप लोगों से शुरू है कि अगर आप लोगों ने जिंदगी में अपना गोल बनाया जी तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आपने अपनी जिंदगी का गोल ही नहीं बनाया तो फिर आप
कामयाब नहीं हो सकते। वो मैं आपको चाहे 10 दिन के बजाय 5 दिन में भी अपना सॉफ्टवेयर सिखा दूं और आपको बता दूं कि भाई ये इस तरह काम करेगा, इस तरह इस पे कस्टमर आएंगे, इस तरह आप अर्निंग करोगे, इस तरह आप लर्निंग करोगे, तो आप कर भी लेंगे, थोड़ी बहुत हो जाएगी। लेकिन जब तक आप अपनी प्रॉपर्टीज चेक नहीं करेंगे, जैसे हमने कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज चेक की ना, जी और जैसे हमें मशीन एक न्यू सही काम कर रही है, एक पुरानी मशीन कम सही काम नहीं करती, तो हमारी एज 25 30 ईयर 22 20 80, आपको भी मशीन की तरह 15 20 30 साल हो चुके हैं चलते हुए। आप लोग भी जो है ना पॉजिटिव और नेगेटिव में मौजूद हैं। अगर आपने अपनी लाइफ का कोई गोल बना लिया, मसलन आप ये देखें कि अगर आपने सोच लिया, आपने ये सोचा हुआ है कि मैंने लाहौर से कराची जाना है, जब आप ये बात सोच लेंगे, अपना गोल बना लेंगे, तो आप जाहिर सी बात है घर आएंगे, कपड़े प्रेस करेंगे, जूते उठाएंगे और तैयारी करेंगे और ट्रेन की टिकट कटाएंगे या बस की टिकट कटाएंगे और आप कराची के लिए रवाना हो जाएंगे। और आपको ये पता है कि आप चल पड़े तो आप पहुंच जाएंगे। और अगर आपने गोल ही ना बनाया, आपने सोचा ही नहीं, तो क्या आप फिर पहुंच जाओगे? नहीं। आसिफ सलीम, आसिफ भाई चले, मेरे ख्याल से बोल नहीं रहे जी। ये पॉइंट समझ आ गया आपको कि जिंदगी में जब आप अपना एक मिशन बनाएंगे, आप अपना एक गोल बनाएंगे ना, तो फिर आप उसे अचीव कर लेंगे। जी सर जी, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये तस्वीर आपको ये शो करवाती है कि एक आदमी कभी इस पॉइंट को सोच रहा है और कभी उस पॉइंट को सोच रहा है। आ रही है मेरी आवाज? जी सर जी, क्लियर है। बाकियों से पूछ रहा हूँ कि बाकी लोग अब खामोश है ना, तो कोई जी आ बोलेगा रही उनमें से? आ रही है। जी, ये तस्वीर आपको ओवर थिंकिंग शो करवाती है। अब ओवर थिंकिंग में ये आ जाता है कि जब इंसान प्लस भी सोचता है और माइनस भी सोचता है, गुमान, ठीक है, ये गुमान कभी राइट हैंड पे कर रहा है और कभी लेफ्ट हैंड पे कर रहा है। अब गुमान से मुझे एक बात याद आ जाती है, सूरत नूर में अल्लाह ताला ने फरमाया 16 और 17 आयत नंबर, और तुम मुझे वैसा ही पाओगे जैसा मेरा गुमान करोगे। आपने वो वाकिया सुना होगा, हजरत मूसा के पीछे फौज लगी, अल्लाह ताला ने दरिया में से रास्ता बना दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जाने का हुक्म दिया गया, आग ठंडी हो गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में पाला गया। हजरत हाजरा को सहरा सहरा के दरमियान में जमजम पिलाया गया। हजरत यूनस को मछली के पेट में पाला गया, रखा गया। इन सब में एक ही चीज थी, और वो था यकीन अल्लाह पर। आप लोग जो गुमान करते हैं ना, आप अब अल्लाह ताला कह रहा है आपको कि आप जैसा गुमान करोगे मैं वैसा कर दूंगा। जरा 1 मिनट एक्सक्यूज मी, जरा 2 मिनट देंगे? मैं जरा बाद में आपसे बात करता हूँ। मैं जरा इसको मीटिंग को थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, स्टॉप 2 मिनट के लिए।
जी अस्सलाम वालेकुम। असल में मैं इधर अकेला बैठा, बाहर जो है ना बेल बज गई थी। ठीक है, मैं बात कर रहा था गुमान की, कि आप लोग भी जब सोचते हैं तो आप प्लस और माइनस दोनों सोच रहते हैं, आप अपना एक गुमान नहीं रखते। जिस वक्त आप आपने कुछ सोचा, अब लोग कहते हैं जी मैंने तो ये सोचा, मैंने तो वो सोचा, वो आप जब अपनी सोच बार बार बदलते हैं तो आपका गुमान बार बार बदल जाता है। जबकि अल्लाह ताला आपसे कह रहा है कि आप जैसा गुमान करोगे मैं वैसा कर दूंगा, आप जैसा मुझ पे यकीन रखोगे मैं वैसा ही करूंगा। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग पॉजिटिव, हमेशा इंसान को पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, नेगेटिव की तरफ तो सोचना ही नहीं चाहिए। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपको मैंने पिछली पिक्स दिखाई है कि फिर इंसान उस कंडीशन में चला जाता है। ये एक अल्लाह ताला का निजाम है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी। जिस वक्त इंसान पॉजिटिव एनर्जी में रहता है ना, तो अल्लाह ताला अपनी उस एनर्जी को हुक्म देता है कि जा मेरे बंदे की सोच को पूरा करके आ। क्योंकि उस अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया है कि तुम जैसा गुमान करोगे मैं वैसा कर दूंगा। तो आप अपना गुमान बदलते रहते हैं, आप कहते हैं पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है फिर नहीं होगा, क्योंकि आपको यकीन नहीं है ना रब पे। अगर आपको रब पे यकीन होगा तो आप अपना गुमान एक ही रखेंगे। ठीक है, किसी को ये बात मेरी समझ में ना आई हो तो सवाल कर सकता है आगे। ये पिक्स नजर आ रही है आपको? हेलो? जी जी आ रही है। हाँ, ये एक साइकिल है, ठीक है, इसको एक बच्चा चला रहा है। क्या इस बच्चे ने जब पहली बार साइकिल चलाई थी तो इसको चलानी आ गई होगी? नहीं, थोड़ा तकरीबन सा अटका कितनी होगा। बार चलाई होगी? कोई आपने अंदाजा भी साइकिल नहीं। सीखी होगी जिंदगी में, हाँ जी, हाँ जी। बाइक भी सीखा होगा, आप जब स्कूल गए होंगे आपने ABC भी लिखनी सीखी होगी। तो क्या फर्स्ट टाइम जब भी इंसान कुछ भी करता है तो क्या आ जाता है करना? नहीं। तो इससे क्या जाहिर हुआ कि जब आपने बार बार ट्राई की, बार बार कोशिश की, तो आपको वो चीज हो गई। हाँ जी। तो इस बात से ये जाहिर होता है कि जब हम कोई भी काम, कोई भी चीज, कोई भी काम बार बार दोहराते हैं और बार बार करते हैं तो वो अल्लाह ताला के कुन जितनी अहमियत रखता है। जी जी। यानी कि वो काम हो जाता है। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है ना, हम कहते हैं ना कि अल्लाह तो सिर्फ कुन कहता है और बस वो चीज हो जाती है। हाँ जी। तो जिस वक्त आप अल्लाह से दुआ करते हैं, आप कोई भी काम बार बार करते हैं, ये जो बार बार का जो अमल है ना हमारी लाइफ के अंदर, हाँ जी। ये आपको गारंटी देता है कि ये काम हो जाएगा। ठीक हो गया? जी बिल्कुल। आप कोई भी काम उठा लें, सिर्फ साइकिल की तो मैंने तो आपको एक मिसाल दी है ना साइकिल की। आप हाँ जी, हाँ कोई जी। भी चीज उठा लें, आप स्कूल में एक बच्चे को भेजें ABC पढ़ने के लिए, प्रेप क्लास में, प्ले में, तो वो बार बार जब करेगा तभी आएगी। एक मैकेनिक है, वो गाड़ियों का काम सीखने के लिए जाता है, तो वो जब गाड़ियों का काम सीखता है तो क्या उसे फर्स्ट टाइम आ जाता है? जब वो बार बार करता है तब वो काम हो जाता है। कोई भी चीज, जी एनीवन। कोई क्वेश्चन इस बात पे? नो सर। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। टेंशन लेते हैं सर। अच्छा जी, ये पिक्स आपको नजर आ रही है? इसमें एक खेत के ग्रीन अंदर, लैंड, बैरन लैंड। इसमें एक खेत के अंदर जो है हरियाली मामा ने है और बोलना एक है खेत बोरी। जो है ना वो बंजर है। हेलो? जी जी।
मैंने कहा इसके अंदर एक खेत आपको बंजर नजर आ रहा है और एक खेत में हरियाली है। जी जी नजर आ रहा है। अब इसकी वजह क्या है कि ये एक शख्स ने एक खेत को काश्त किया तो उसकी हरियाली बहुत अच्छी आ गई और एक सर पकड़ के बैठा है उसकी नहीं आई। इसकी हाँ वजह जी। क्या हो सकती है? क्योंकि मेहनत जिसने मेहनत, क्योंकि जो जिसने खेत उगाया उसने सख्त मेहनत करके उसको उगा लिया है, और नहीं, जिसकी जमीन बंजर है उसने मेहनत थोड़ी की, कंजूसी से नहीं काम सर किया। भी जमीन का मसला है, एक ने अच्छी नहीं जगह है, नहीं एक नहीं नहीं ने नहीं दूसरी- नहीं 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 नहीं, जमीन का मसला नहीं। नहीं। नहीं नहीं जमीन का मसला नहीं है, जमीन एक ही है, ठीक है। जमीन कहते हैं हाँ एक जी। एक ने प्रॉपर जो है ना वो अपनी ड्यूटी निभाई, हाँ प्लानिंग उसने अच्छे काम किए, उसने आप वक्त पे से पानी दिया, वक्त पे इसकी देखभाल की और हाँ जी, 4 हाँ जी। महीने के बाद अपनी गंदुम काट ली अच्छी। एक ने काम नहीं किया। और उसको सिला नहीं मिला। हाँ देखें, अब जो मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूँ वो यही बताना चाह रहा हूँ ना कि कोर्स में आपको सिखाऊंगा, 10 दिन में अर्निंग होगी। अगर आप लोग करेंगे ही नहीं तो अर्निंग कैसे होगी? अगर आप प्रॉपर करेंगे तो 10 दिन में इंशाल्लाह अर्निंग होगी। ये मिसालें मैं आपको दिए खड़ा हूँ, पॉजिटिव, नेगेटिव और मेहनत की, ठीक है। जी जी। कहने का मकसद ये है कि अंदर अगर कामयाबी का ख्याल नहीं होगा तो फिर बाहर भी आप वैसे के वैसे ही रहेंगे। आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए कि हाँ मैंने लाहौर से कराची जाना है, हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। जी जी। आप वो काम कर जाएंगे क्योंकि आप होंगे पॉजिटिव एनर्जी में। और अगर आपने ये सोच लिया पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा, मैं जाऊं ना जाऊं, तो फिर अल्लाह ताला कहता है कि आप जैसा गुमान करोगे मैं वैसा कर दूंगा। आपने पहले सोचा मैं जाऊं, बाद में सोचा मैं ना जाऊं, तो फिर आप नहीं जाओगे, ठीक है। नहीं अंदर जाएगा। अगर कामयाबी का हाँ जी। ख्याल नहीं होगा तो फिर बाहर भी आप वैसे के वैसे ही रहेंगे। वो कहते हैं ना, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से तो क्या जज्बात। होता है, धरती अगर बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। जी जी आया है। आगे आ जाते हैं। ये आपको वक्त की एक फिक्स नजर आ रही होगी जिसमें सुबह का टाइम है, दोपहर का टाइम है और शाम का टाइम है। जी जी। तो देखो दोस्तों, वक्त अब कितनी तेजी से गुजर रहा है। हाँ जी। वक्त ऐसे ही गुजर जाएगा, आप ये सोचते रह जाएंगे कि मैं कल करूंगा, मैं कल करूंगा, मैं कल करूंगा, मैं कल करूंगा, और वक्त गुजर जाता है, आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। और जब जिस वक्त आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं ना तो आपकी जिंदगी बोर हो जाती है, आप पे बर्डन आ जाता है। मसलन कैसे, आपको मैं मिसाल दूंगा। एक शख्स 8वीं के पेपर देता है और उसकी सप्ली लग जाती है, तो जब वो 9वीं क्लास में आता है तो जाहिर सी बात है उसने 9वीं के वो 10 पेपर भी देने होते हैं और वो सप्ली वाला पेपर भी देना होता है। हम लोगों ने अपनी लाइफ जो अब तक गुजारी, 20 साल, 25 साल, 30 साल, हम अपनी वो पिछली सप्लियां अपने साथ उठा के फिर रहे हैं आज तक। तो हमारी जिंदगी हमें एक अजीब बर्डन लगती है। अगर हमने वो जिंदगी उस वक्त के साथ गुजारी होती तो आज हम वो सप्लियां ना भर रहे होते ना, आज हम परेशान ना होते कि काम नहीं है, समझ नहीं आता क्या करें। क्योंकि हम अपनी लाइफ में जो अच्छा बुरा करके आते हैं ना वही आने वाले टाइम में, यानी कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं ना। जैसे मैंने अभी पिछली पिक्स में आपको दिखाया कि एक ने अच्छा काम किया तो उसने अच्छी फसल काटी, एक ने नहीं किया तो वो बैठा है फिर ऐसे ही। तो वक्त गुजर जाएगा, वक्त ने नहीं रुकना। आप एक जगह खड़े रह जाओगे और वो जो आप एक जगह खड़े रह जाओगे आपकी जिंदगी जो है ना वो भारी हो जाएगी, वजनी हो जाएगी। जी जी। लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि एक टाइम में साइकिल हुआ करती थी और अब जहाज, और अब बाइक और जहाज का दौर है। अच्छा, ये जहाज जिस वक्त जिसने बनाया था, बनाने का सोचा था, तो उसने कहा था कि मैं हवा में उड़ूंगा। तो उस वक्त के जो उसके आसपास के लोग थे तो उन्होंने उसे क्या कहा होगा? मजाक उड़ाया होगा इसका।
हाँ, उन्होंने कहा होगा कि ये पागल का बच्चा है, हाँ जी, हाँ जी। ये पागलों वाली बातें करता है। तो आज ये साबित हुआ कि पागल वो शख्स था या वो जो बाकी अवाम थी वो थी। जो बाकी वाम थी। तो वो शख्स जिसने उस वक्त में ये सोचा था कि मैं जहाज बनाऊंगा और वो बना गया, उसकी वजह क्या थी? क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी में था, उसका गुमान पक्का था, उसने जो सोचा था वो पा लिया। यस। तो यही चीजें थी जो आपसे शेयर करनी थी। अब आप ये देख लें कि आपके साथ मैंने ये 9 पॉइंट शेयर किए हैं। तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है 9 JPG। आपको नहीं आ रहा होगा शायद। ये हमने नोट कर लिए। अब आप ये देख लें कि इन सारी बातों का बताने का मकसद ये है कि आपने पहले तो अपनी जिंदगी का एक गोल बनाना है, क्योंकि गोल के बगैर जब आपने ये सोचा ही नहीं कि मैं लाहौर से कराची जाऊं, तो फिर आप क्या करोगे सारा दिन? आप अपने मोहल्ले में अपने दोस्तों में इधर उधर चक्कर ही लगाओगे, क्योंकि आपका कोई गोल ही नहीं है, आपका कोई मिशन ही नहीं है जो आप पूरा करोगे। अगर आपका मिशन होगा तो फिर आप उस मिशन की तैयारी करेंगे ना, पॉजिटिव सोचेंगे। और जो मशीन वाली बात, मशीन वाला जो पॉइंट था, वो मशीनें हम हैं जो हम 30-35 साल गुजार के बैठे हैं, हमारे नट बोल्ट ढीले हुए पड़े हैं। अब हमें अपनी मशीनों की रिपेयरिंग करनी पड़ेगी। ऐसा ही है। यस सर। रिपेयरिंग कैसे होगी? हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा, जैसे हमने कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में झांका। हमें अपने अंदर झांकना है कि हम पॉजिटिव में हैं, हम नेगेटिव में हैं। तो हमें पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, जिंदगी में अपना एक गोल बनाना है। उस गोल को जब आप अपना गुमान बदलोगे नहीं, मुश्किलें आएंगी, रुकावटें आएंगी। जी जी। आप लाजमी नहीं है कि आप बहावलपुर से लाहौर से चलेंगे आपको कराची तक मोटरवे ही मिलना है। रास्ते में रोड टूटा हुआ भी आएगा, गड्ढे भी आएंगे, ब्लॉक भी होगा रोड। तो अल्लाह ताला कहता है कि सब्र शुक्र के साथ जिंदगी गुजार के आ मेरे पास। यानी कि ये होगा, रोड टूटा हुआ मिलेगा आपको। अगर ना मिलना होता रोड टूटा हुआ, तो फिर रब ने आपको क्यों कहना था कि सब्र शुक्र से लाइफ गुजार के आओ? बारिश तो होनी है, आपको छतरी लेनी पड़ेगी, आपको नेगेटिव एनर्जी से वास्ता पड़ेगा दुनिया में, लेकिन आपने पॉजिटिव ही रहना है। ठीक है, समझ आ गई बात? ये वो जी चिप सर। है, ये वो चिप है जो आप अगर आप अपने माइंड में लगा लेते हैं, बिठा लेते हैं कि आज से मैंने अपनी जिंदगी में ये बनना है। आप सोच लें, जैसे इमरान खान ने सोच लिया कि मैं वजीर आजम बनूंगा, और वो शख्स लगा रहा तो बन गया था ना वजीर आजम। बार बार जी। आप जो भी सोचेंगे, बार बार आप जो भी काम करेंगे, वो हो जाएगा। बीच में नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना आपने कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। फिर वो जो ना वाला हिसाब किताब है, वो फिर अल्लाह ताला कहता है कि नहीं होगा। ठीक है, ये मीटिंग का टाइम जो है ना अब खत्म होने को है, 5 मिनट रह गए। अगर आपका कोई सवाल रहता है आप मुझसे कर लें। कल इंशाल्लाह क्लास होगी, आपको जो है ना ये 10 दिन के अंदर 5 क्लासें होंगी हमारी, जिसमें 1 से 2 क्लास जो है ना आपको बेसिक हल्का सा ग्राफिक सिखाया जाएगा, ताकि आपको एक पोस्ट बनानी आ जाए कि पोस्ट बनती कैसे है। 2 मिनट में बन जाती है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगाएंगे, आपको पोस्ट का बता देंगे कि कैसे बनती होती है पोस्ट। उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर सिखाएंगे, और 2 क्लासें सॉफ्टवेयर की होंगी, 2 क्लासें जो है ना वो ग्राफिक की होंगी, और 1 क्लास में आपको आपकी ऑनलाइन शॉप और आपका जो बिजनेस है वो आपको बिल्ड करवा के आपको दे दिया जाएगा। और उसके बाद हमारी ये जो है ना क्लास खत्म, ये कोर्स खत्म हो जाएगा। ये एक बेसिक कोर्स है जो आपको दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में ही दिया जा रहा है। सिर्फ ये सोच के कि इंसान को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलना चाहिए। जिंदगी में इंसान पैसा बहुत कमाता है, लेकिन इधर ही रह जाता है।
काम वही आएगा आपके जो आप दुनिया में अच्छे अमाल कर जाएंगे, उससे आपकी दुनिया भी सुधर जाएगी और आपकी आखिरत भी सुधर जाएगी। ठीक है, अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई सवाल हो किसी भाई बहन का, तो वो अब डेली क्लास ये 5 क्लासें होंगी, एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास होगी। अब कल क्लास होगी? जी कल क्लास होगी, कल कितने सॉफ्टवेयर की बजे? क्लास होगी, ताकि आपको जरा एक आइडिया हो जाए कि अब बिजनेस किया कैसे जाता है। ठीक है ना? अगर आप सोचेंगे ना कि मैंने इमरान खान के दोस्तों को मैसेज सेंड करने हैं, तो आप इमरान खान के दोस्तों को मैसेज सेंड कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे ना कि मैंने फलां को अपनी पोस्ट दिखानी है, फलां को मैंने ये कर, यानी कि जो आप सोचेंगे आप अपना पैगाम वहां तक पहुंचा लेंगे। सिर्फ बात वही है कि आपने पॉजिटिव रहना है और मेहनत करनी है। मेहनत आपने करनी है, ये कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। ये रातों की मेहनत तो हमने की है इस स्किल के ऊपर, आपको तो ये फ्री में दी जा रही है। ठीक है ना? आपने तो जस्ट पूरे दिन में 1 घंटा देना है, 1 घंटे के अंदर आप 300-400 लोगों को जो है ना अपना पैगाम पहुंचा देंगे, आपकी ऑडियंस तक आपकी प्रोडक्ट पहुंच जाएगी। और उसके बाद आपका काम है कि आप उस ऑडियंस से किस तरह बातचीत करते हैं, किस तरह आप उनसे डील करते हैं, बाकी चीज पहुंचेगी कैसे, प्रॉफिट आपके पास कैसे आएगा, वो सब ऑनलाइन हो जाएगा, क्योंकि आपने भी ऑनलाइन ही वर्क करना है। तो कल इंशाल्लाह हम आपको बिजनेस स्किल के बारे में बताएंगे, कल क्लास शुरू करेंगे इंशाल्लाह। कल कितने बजे क्लास होगी? क्लास 9 बजे ही हुआ करेगी, क्योंकि सही। बाकी दिन में लोग अपने जो है ना वो काम में बिजी भी होते हैं। हाँ जी। काफी लोग ऐसे भी होंगे। क्या आप मुझे ये बताएंगे कि ऑनलाइन बिजनेस में और फिजिकल बिजनेस में फर्क क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, ऑनलाइन में ये फर्क होता है कि हम ऑनलाइन घर बैठकर अपना काम कर सकते हैं। अपनी कोई भी प्रोडक्ट है हम वो बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, आगे जिसको चाहें हम कर सकते हैं। और जो फिजिकल जो है, फिजिकल में ये है कि हम खुद जाकर देकर आएंगे। अगर हमने अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करनी है तो हम खुद जाकर देकर आएंगे शॉप पर, तो उसमें हमारा टाइम ज्यादा लगेगा, हमारा बहुत ज्यादा खर्चा भी होगा, आने जाने का खर्चा होगा। और जो ऑनलाइन है वो हम घर बैठकर अपना इजीली अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि फिजिकल में आप देखें कि आप एक टाइम पे सुबह घर से निकलते हैं और शाम को वापस आते हैं तो 10 कस्टमर से मिलकर आते हैं। उस 10 की भी आपके पास गारंटी नहीं होती कि वो आपसे चीज लेगा या नहीं लेगा भी। जबकि ऑनलाइन के अंदर आपका खर्चा भी कम है और आप अपना पैगाम हजारों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो क्या आप 1000 बंदों के पास जब अपना पैगाम पहुंचाएंगे तो क्या उस 1000 में से 10 आपके पास आपको ऑर्डर नहीं देंगे? अगर 1000 में से 10 नहीं देंगे ना, तो फिजिकल में आप जो 10 करके आए थे ना उनमें से एक भी नहीं देगा फिर। बिल्कुल ठीक है। क्लास अगर कोई और सवाल हो किसी का? ग्राफिक डिजाइनिंग में थंबनेल बनाना भी सिखाएंगे या नहीं? सब कुछ सिखाएंगे। आपको जो स्किल सिखाई जाएगी ना, आप उस स्किल से 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 सर्विसेज दे सकते हैं। हमने तो आपको जस्ट एक बिजनेस सिखाना है ना। आप अपना माइंड बनाएं कि आपने जॉब नहीं करनी। ये बात मैंने आपसे पहले बताई थी कि मुझे अपनी लाइफ के 32 इयर्स हो गए हैं, जो मैंने अपनी 22 साल जिंदगी 35 साल की जिंदगी में 22 साल जब से होश संभाला मैंने कभी भी जॉब नहीं की। आप अपना गुमान अच्छा बनाएं। आप मुलाजिम बनने का क्यों सोचते हैं? कि आपने थंबनेल की बात कर दी कि जी फ्रीलांसिंग में जाएंगे, फाइबर पे जाएंगे, थंबनेल बनाएंगे, वहां से 200 रुपए बनेंगे हमारे। तो भाई बड़ा गोल बनाओ, बड़ा सोचना है। अपना बिजनेस, अपना बिजनेस बनाना है अपने। आपको बिजनेस स्किल सिखाई जा रही है, ना कि जॉब स्किल सिखाई जा रही है।
آپ کرنا چاہیں کر لیں, آپ کی مرضی, آپ کو سکھا دیا جائے گا اس اسکل کے اندر. گرافک ڈیزائننگ آپ 5 منٹ میں تھم نیل بنا لیں گے, ہم آپ کو سکھا دیں گے, 1 دن میں سکھا دیں گے. اور کوئی؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر آپ نے یہ جو کلاس جوائن کروائی ہے تو میں تو اس سے بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوئی ہوں, اور باقیوں کا مجھے نہیں پتا, یقیناً وہ بھی ہوں گے. اور یہ جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, اس طرح سے جو ہم آن لائن کام کر سکیں گے تو اس میں ہمارا ٹائم بھی کم لگے گا. اور میں تو اس چیز کو بہت پسند کرتی ہوں, آن لائن کام کو, گھر بیٹھے, کہ میں گھر بیٹھ کر ہی کروں, مجھے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہ ہو. تو امید کرتی ہوں کہ آپ ہمیں جو سکھائیں گے وہ انشاءاللہ بہت اچھا سکھائیں گے. انشاءاللہ. آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں اس کلاس سے مطمئن نہیں ہوں؟ میں نے کہا میں اس کلاس سے بہت مطمئن ہوں, اچھا میں ٹھیک ہے, سیٹسفائیڈ ہوں. شکریہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مجھے لگا کہ آپ نے ایسے کہا, تو اسی وجہ سے میں نہیں, پوچھ رہا ہوں کہ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لے. یہ جو میں آپ کو 10 دن میں 5 کلاسیں دوں گا, یہ 5 کلاسیں میں آپ کو 5 دن میں دوں گا, جبکہ میری محنت اس کے پیچھے شاید 2-2.5 سال کی ہو. جی بالکل. ورنہ تو لوگوں کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ آن لائن میں کریں کیا, شروع کہاں سے کریں, ختم کہاں پہ کریں. لیکن آپ جی سے بالکل. درخواست یہی ہے کہ اس کے بدلے میں آپ نے لوگوں کے ساتھ اچھے اعمال کرنے ہیں, اچھے عمل کرنے ہیں. اگر آپ اچھا بوئیں گے تو ہی اچھا کاٹیں گے. آپ جی سکل تو جی سیکھ سر. جائیں گے, سکل تو آپ سیکھ جائیں گے, لیکن پھر آپ کو بدلے میں آنا کتنا ہے؟ آنا وہی جو میں نے پیچھے آپ کو پکس دکھائی تھی, آنا تو وہی ہے, ملنا تو آپ کو وہی ہے. جتنی آپ محنت کی ہوگی, جتنا آپ نے اچھا لوگوں کے ساتھ تعلق بنایا ہوگا, اچھا اخلاق رکھا ہوگا, اچھا کسی کے کام آئے ہوں گے, تو پھر ہی آپ کے ساتھ آپ کو زندگی میں وہی ملتا ہے جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں. اگر جی آپ سر دوسروں کا بالکل. بھلا سوچیں گے تو آپ کا بھلا ہونا ہے. اگر آپ دوسروں کا برا سوچیں گے نا تو آپ یقین کر لیں آپ کا اپنا ہی برا ہونا ہے. اور یہ جو برا سوچتے ہیں نا, یہ نیگیٹو انرجی ہے, آپ بچیں ان سے. کسی کا کوئی سوال؟ ٹھیک ہے, اور کوئی کوشچن ہے؟ ہاں جی, کچھ پوچھنا چاہیں گے جو سمجھ میں نہ آیا ہو آپ کے؟ آگے سمجھ. تو پھر نیکسٹ انشاءاللہ کلاس میں باتیں ہوتی رہیں گی. ٹھیک ہے, جو آپ کو سمجھ نہ آیا ہو آپ پھر بھی کلاس میں پوچھ سکتے ہیں کل سے.